So during this condition, the voltage goes to almost 20 volt in afternoon session, like from say 12 to 3 o'clock. So at that time, most of the inverters they fail. Our inverter will practically work because we have limited to our inverter voltage to 300 volt. This particular thing we have observed in Saurashtra region quite a lot. So then we worked on that, and we now our inverter is one of the best inverter available, which will fight against this low as well as high voltage. Even we have seen, like, we have installed our system in southern places, Tamil Nadu and all, where if you switch on the air condition, also your voltage falls below 130 or 145 volt. So that time other inverters fails, our inverter doesn't. In this inverter, what we have done, even after failing, other inverter takes almost 3 to 5 minutes. Our inverter within 30 seconds it will reboot. That is another biggest advantage which our inverters. This is one of the best what you can say solution what we have given. And as far as the faults are concerned, we also give a fault indicator in our display. When suppose a fault is showing F35. F35 is nothing but a grid failure. Number of times customer doesn't know end user. So they can report it as F35. F35 is like you are using 3 phase and 1 phase goes off. So it will go in F35 condition. Similarly, we have F33 fault indication. This F33 is basically when the current increases. As I mentioned you that if you have a 3 phase and the single phase is having some connectivity issue or it is not properly trimmed. So that time the current on that particular phase will increase. So in that case, your inverter should stop. So inverter go in fault condition with, it will be highlighting F33 fault. So if you report that fault to us, we can guide your customer. This is the problem, or we can guide towards the nearby EPC player, or we can send our engineer who can rectify the problem at the site. So this is one of the best solution which we got it for the Indian condition. Now the second slide which we are showing it, this will show you that we have developed with the Indian company Jindal to develop this heat sink. This is basically an aluminum 6K aluminum alloy heat sink, which is a non-ferrous, and we are using a silica nitrate insulator. So with the help of silica nitrate insulator, the temperature variation we have practically seen it can control at almost 10 to 15 degrees. So as it is shown in this figure, there are 2 brands. Give you the name of those brands, but brand 1 and brand 2 it is mentioned. And brand 3 is our at 45 degree. At 45 degree we have taken the infrared sensors. सुनील सर, एक स्मॉल रिक्वेस्ट, थोड़ा हिंदी में बता सकते हैं आप? थोड़ा बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये स्लाइड, इसके पहले वाला भी स्लाइड मुझे समझाना है हिंदी में। स्वप्निल सकते हैं, बट समझ जाएंगे, थोड़ा सा ब्रीफ बोल दीजिए। अच्छा, ये जो अभी हम बेसिकली क्या होता है कि जो इन्वर्टर होता है इसका हीट सिंक प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये जो हीट सिंक है, जिंदाल जो इंडिया की कंपनी है, इनके साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है, और ये हीट सिंक और ये जो प्रोफाइल है हमने यहाँ पे डेवलप करके, मतलब बेसिकली इसका कैड में हमने पूरा 3D पिक्चर निकाल के we have developed this heat sink, and now it has been supplied us to by Jindal. It's basically an Indian company. यहाँ पे हमने 2 कॉम्पिटिटर्स लिए हैं, के सोलारे और ब्रांड 1 एक है और ब्रांड 2 एक है। तो इसमें हमने आयर कैमरे के थ्रू हीट चेक किया हुआ है। इसमें ऐसा दिखाई गया है कि के सोलारे का आपने देखा होगा ये पूरा ग्रीनिश है, यहाँ पे कोई हॉटस्पॉट नहीं है। ब्रांड 2 में थोड़ा सा हॉटस्पॉट दिखाई दे रहा है। ये 45 डिग्री टेम्परेचर पे अगर आपका इन्वर्टर 100% डिलीवरी करता है पावर, तब जाके ये हमने फोटोग्राफ लिए हुए हैं। और ब्रांड 3 है जो बहुत ही हीट होता है एट 45 डिग्री। हमारा इसके लिए नहीं होता है क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इसमें हम लोगों ने सिलिकॉन नाइट्रेट, तो उसकी वजह से काफी हद तक इसका हीटिंग कम हो जाता है। अभी दूसरा आप देखोगे वेट पर केजी, हमारा के सोलार इन्वर्टर का वेट पर केजी इज अराउंड 12.5, जो बाकी के ब्रांड्स है अराउंड 13 है, किसी का 14.5 है, किसी का 18 है। क्योंकि ये बेसिकली टेक्नोलॉजी लिमिटेशन है।
के पास में जो टेक्नोलॉजी ये 2 लेवल टेक्नोलॉजी हमारे पास में 3 लेवल है। और जैसे मैंने बताया हम लोग सिलिकॉन नाइट्राइड इंसुलेटर वॉल्यूम पर मीटर क्यूब भी आप अगर देखोगे तो हमारा 0.021 है, बाकी लोगों का 0.03 है या 0.2 बाकी लोग। तो इससे भी अगर आप कहेंगे कि हमारा वर्ल्ड का सबसे लाइट वेट इन्वर्टर है बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेज। अभी ये जो तीसरा स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप थोड़ा सा इसको ठीक से देखिए और समझ लीजिए। एक आइडियल इन्वर्टर जो है, ये पहले हमने जो ब्लू कलर में दिखाया गया है, ये आइडियल इन्वर्टर। आइडियल इन्वर्टर क्या होता है कि भाई आइडियल इन्वर्टर मेरा 45 टू 60 डिग्री तक चलना चाहिए। सेकेंडली मैं अपने इन्वर्टर पे 30% ओवरलोड कर पाऊंगा और आउटपुट वोल्ट जो पावर है वो 10% में चल जाना चाहिए। और हमने क्या देखा है इंडिया में बहुत से इन्वर्टर्स हैं जो सेकंड हमने ग्राफ दिखाया है यहाँ पर ये सिर्फ 100% लोडिंग में ही इनका पीक पावर में हीटिंग चालू हो जाता है। और क्या होता है अराउंड 48 डिग्री के ऊपर अगर आपका हीटिंग चला जाता है तो ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली पावर डी रेटिंग कर देता है। जैसे अभी आपने 10 किलोवाट का इन्वर्टर यूज कर और उसका पावर दोपहर के वक्त पे 48 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे वो 10 किलोवाट नहीं करेगा, वो 9 किलोवाट करेगा। जैसे 55 डिग्री होगा वो 8 किलोवाट करेगा। तीसरे स्टेज में हमने हमारा टेक्नोलॉजी जो दिया हुआ है के-सोलर का, ये ऑलमोस्ट 60 डिग्री तक काम करता है। आपने देखा होगा हमारे इन्वर्टर्स, काफी लोगों का कहना है कि हीट होता है। ये हीट इसलिए होता है क्योंकि हमने क्या किया है, हमने डी रेटिंग की हुआ है। अगर हमने डी रेटिंग करते हैं इन्वर्टर को तो ऑटोमेटिकली मैं 10 किलोवाट का इन्वर्टर अगर 8 किलोवाट पे चलाता हूं तो हीटिंग कम नहीं होने वाला है। हम लोग 10 किलोवाट का इन्वर्टर 10 किलोवाट पे ही चलाते हैं जबकि एम्बिएंट टेम्परेचर आपका 50 डिग्री हो। दिस इज बेसिकली द एडवांटेज विद आवर के-सोलर इन्वर्टर। ये जो ग्राफ में दिखाया है टेम्परेचर डी रेटिंग 60 डिग्री तक हमारा इन्वर्टर चल जाता है, बाकी का इन्वर्टर 50 डिग्री पे ही काम करना बंद पड़ जाता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज particularly for areas where heating is more. Because our inverter has been, हमारे इन्वर्टर्स हद तक अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ पे रिमोट लाइक नागपुर है या राजस्थान है या गुजरात है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहाँ पे ये कर लेता है। उसके बाद में हमने क्या किया है कि फॉल्ट इंडिकेटर भी दिया है। ये फॉल्ट कैसा है कि भाई आपका IGBT जो अंदर डिवाइस होता है जो स्विचिंग करता है ऑन एंड ऑफ, उसका टेम्परेचर जब एम्बिएंट टेम्परेचर आपका 60 डिग्री होता है तो इंटरनल जब ये ऑन ऑफ होते हैं स्विचेस तो इनका टेम्परेचर तकरीबन 100 डिग्री या 110 पे पहुंच जाता है। जैसे ही 110 पे पहुंच जाता है हमारा इन्वर्टर डी रेटिंग हो जाता है, आपको एक फॉल्ट इंडिकेशन भी आता है, ये F64 आ गया है। F64 इसके लिए होता है कि कस्टमर को मालूम पड़ती है कि भैया अभी टेम्परेचर इसका एक्सीड हो गया है। और हम लोग भी हमारा जो SCADA सिस्टम है हम लोग जब चेक करते हैं तो हमें भी पता चल जाता है रिमोटली कि भाई इसका टेम्परेचर काफी हद तक अभी बढ़ गया है। तो ये स्लाइड हमारा बेसिकली फॉर टेम्परेचर डी रेटिंग। अभी ये नया दूसरा जो स्लाइड हम लोग दिखा रहे हैं ये बेसिकली हमने बनाया है अभी ऑप्टिमाइजर मार्केट में बहुत सा हमने सुना ही, दो तीन कंपनी है जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है ऑप्टिमाइजर कुछ नहीं होता है, एक DC-DC कन्वर्टर होता है जो एक पैनल में लगाया जाता है और पैनल से जो पावर होता है वो इन्वर्टर तक लेके जाया जाता है और इन्वर्टर के थ्रू वापस वो कन्वर्जन किया है। तो इसलिए हमने क्या किया है हमारे इन्वर्टर्स के लिए, हमने 5-6 टाइप के इन्वर्टर्स डेवलप किए हुए हैं। जैसे एक सिंगल इन्वर्टर सिंगल MPPT, यहाँ पे आपका एक ही इंक्लिनेशन है, आपका अलाइनमेंट एक ही है, तो आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइजर करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि मेरे 2 इंक्लिनेशन है तो हमारे पास में 2 MPPT वाले इन्वर्टर्स हैं। आपके पास में सपोज 3 इंक्लिनेशन है तो आप 3 MPPT वाला इन्वर्टर यूज कर सकते हैं। आपके पास में 4 इंक्लिनेशन है जैसे फोटो में दिखाया गया है, 5-6 आपके घर हैं, आपको अलग अलग MPPT यूज करना है, वहाँ पे आप ये 4 MPPT वाला यूज। दूसरा एडवांटेज हमारे MPPT में क्या होता है कि हमने जो MPPT का बैंड है वो बहुत बड़ा दिया होता है। क्या होता है, ये जो सोलर पैनल होते हैं ये आज के दिन पे आपको बहुत ही अच्छा पावर जनरेशन दे सकते हैं 1 साल 2 साल, पर 2 या 3 साल के बाद में इंटरनली उसका अब आपको भी पता है वो डेफिशिएंसी मतलब वो डी रेटिंग फैक्टर चालू हो जाता है उसका, और ड्यू टू डस्ट और हॉटस्पॉट और सम अदर रीजन पावर जनरेशन भी कम हो जाता है। तो जिसका भी इन्वर्टर का MPPT का रेंज बहुत कम है, फॉर एग्जांपल से अभी पहले 1-2 इन्वर्टर्स अब देखें जिनका MPPT रेंज जैसे 360 से लेके 860 वोल्ट है, पर अगर 360 है और आपने आपका जो PMP है
VOC है, आपका तकरीबन 400 वोल्ट का है। तो अगर आप सुबह देखेंगे तो 3 साल के बाद में वो आने के लिए आपको 9 बज जाएंगे, तो आपका 6 से 9 बजे 3 घंटे का तो लॉस इनडायरेक्टली हो जाता है। वैसे ही शाम में आपका लॉस बढ़ जाता है। तो ये 5 साल के बाद में आपका जनरेशन कम हो जाता है ऐसे टाइप के इन्वर्टर जहाँ पे वोल्टेज बैंड बहुत कम है उनका MPPT। तो आपको तो कोई भी कभी इन्वर्टर लेना है तो ऐसा इन्वर्टर लीजिए जिसका वोल्टेज बैंड बड़ा हो और जो 5 या 10 साल में वो काम कर सके। ऐसा नहीं कि भाई आपको 5 साल के बाद में वापस पैनल वहां पे दूसरा जोड़ देना है और उसका VOC बढ़ा दो और फिर इन्वर्टर चलेगा, कि सुबह और शाम के वक्त में वो जनरेट नहीं कर पाए। तो हमारा इन्वर्टर सबसे अच्छा काम करता है ऐसे कंडीशन। ये हमने इसके लिए अचीव किया है, इसको कहते हैं हम लोग डायनामिक एफिशिएंसी। डायनामिक एफिशिएंसी क्या होता है कि डिफरेंट वोल्टेज कंडीशन, डिफरेंट टेम्परेचर पे ये आपको एक्सीलेंट डायनामिक एफिशिएंसी देगी। तो ये स्लाइड पर हमने ये बताना चाहते हैं हम लोग कि ऑप्टिमाइजर और नंबर ऑफ MPPT आप यूज करते हैं। ऑप्टिमाइजर कहाँ पे यूज करना चाहिए? जैसे आपने 10 पैनल लगाए हैं और 10 पैनल का डायरेक्शन अलग अलग है, एक साउथ वेस्ट है, एक साउथ ईस्ट है, मतलब वो हर अलग अलग इंक्लिनेशन है। हाँ, वहाँ पे आप ऑप्टिमाइजर लगा सकते हैं और ऑप्टिमाइजर लगाते हैं तो उसका खर्चा भी ज्यादा होता है और प्राइस बहुत ज्यादा है। और वैसे देखा जाए अगर आप सिंगल इंक्लिनेशन में अगर ऑप्टिमाइजर लगाते हैं तो उसका कोई फायदा होता नहीं। So this slide which we are compared with the optimizer. अभी ये स्लाइड में हम लोग थोड़ा कंपैरिजन आपको दिखा रहे हैं सोलार वर्सेस अदर्स। जो मैंने बताया डायनामिक एफिशिएंसी, हमारी जो डायनामिक एफिशिएंसी 99। हेलो सर, सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा सा वॉइस कम आ रहा है, एक बार चेक करेंगे, शायद वो हो गया, थोड़ा सा कम हो रहा है। हाँ हाँ, हेलो, तो ये अपने आप हो रहा है। ठीक है सर, नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं कि सोलार और बाकी की जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बहुत से चाइनीज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आपके पास में। तो यहाँ पे हमारा डिस्टिंक्ट एडवांटेज क्या है ये सोलार में? MPPT यानी क्या होता है सर? MPPT क्या है कि ये बूस्ट सर्किट है। मतलब मैं क्या करता हूँ, मेरा पैनल जैसे दे रहा है 200 वोल्ट, मुझे 200 वोल्ट से 300 वोल्ट या 400 वोल्ट पे लेके जाना है, मुझे ये वोल्टेज बूस्ट करना पड़ता है। मतलब मुझे ये पावर एक जगह से लेके दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ता है, मुझे ऊंचाई पे जाना पड़ता है। तो ऊंचाई पे लेके जाने के लिए एक बूस्ट सर्किट उसको बोलते हैं। ये बूस्ट सर्किट के लिए हम लोग IGBT यूज करते हैं और अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने जो यूज की है वो सिलिकॉन कार्बाइड डायोड। ये सिलिकॉन कार्बाइड डायोड थोड़ी सी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होती है, बट डेफिनेटली ये क्या होती है कि ये टेक्नोलॉजी से आपका हीटिंग कम हो जाता है। जैसे ही हीट कम हो गया वैसे ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वैसे आपकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, वैसे ही आपका पूरा सर्किट काफी कम हो जाता है। तो ये हमने अचीव कर पाए हैं अभी, और 2-3 कंपनी और है जो ये टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। हम भी मतलब ये टेक्नोलॉजी बेसिकली हमारी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी टेक्सास ने बनाई हुई है और उन्होंने बाकायदा व्हाइट पेपर दिए हुए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो हमने अडॉप्ट की और सक्सेसफुली ये काफी हद तक चल रही है। तो ये टेक्नोलॉजी से हमें क्या अचीवमेंट मिला है कि हमारी एफिशिएंसी 99.9 है। आज आपने देखा होगा कि सोलर पैनल इतना एक्सपेंसिव होते जा रहा है, तो उसमें से हमारी जो R&D टीम है वो जितना हो सके उसमें से एक्सट्रैक्ट करने की एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। तो ये दूसरी जो कंपनीज है उनकी अगर एफिशिएंसी देखोगे तो अराउंड 98.7 है। तो आपको तकरीबन 1% एफिशिएंसी ये सोलार से ज्यादा मिल पाती है अगर आप। दूसरा एक अचीवमेंट हमने जो यूज यहाँ पे किया हुआ है वो एंटी एलियासिंग फीचर है। अभी एज पर IEC नॉर्म, IEC मतलब जो इंटरनेशनल बॉडी है, उन्होंने कहा है कि भाई आपका 1 सेकंड के नीचे आ जाना चाहिए। एंटी एलियासिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही आपकी ग्रिड डिस्कनेक्ट हो जाती है या ग्रिड बंद जाती है तो आपका इन्वर्टर विदिन मतलब 1 सेकंड के अंदर वो बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि ये IEC ने इसके लिए नॉर्म्स निकाला है कि भाई कोई कहाँ पे मेंटेनेंस कर रहा है, तो वो अगर स्विच ऑफ करके अगर मेंटेन करता है और आपका इन्वर्टर अगर वहाँ पे वोल्टेज जनरेट करके एक्सपोर्ट कर रहा है तो मे बी शॉक बैठने का चांसेस है वो जो बंदा वहाँ पे काम। तो यहाँ पे हम लोग एज पर IEC नॉर्म्स है कि 1 सेकंड के अंदर आपका अचीव होना चाहिए। ये जो ग्राफ हमने फर्स्ट दिखाया है तो हमारा जो है अचीवमेंट 0.9 मिली सेकंड है एज कम्पेयर टू अदर्स जिनका 1 से 5 मिली सेकंड तक जाता है। हमारा तो 0.9 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड से कम अचीव हुआ है।
ये भी बिकॉज हमने टेक्सास का क्वाड कोर यूज किया हुआ है, इससे ये एडवांटेज हमें मिल रहा है। तीसरा हमारा जो वेवफॉर्म डिस्टॉर्शन, अभी क्या होता है सर कि वेवफॉर्म अगर मेरा खराब है तो इट इज बेसिकली जैसे मैंने खराब पानी पिया तो डेफिनेटली मेरे बॉडी में तो उसका कुछ ना कुछ अफेक्ट होगा ही ना। तो वैसे ही आपका जितना अच्छा वेवफॉर्म होगा उतना आपका ग्रिड अच्छी होगी। भले ही ग्रिड हमारी नहीं है, ग्रिड यूटिलिटी की है, पर अल्टीमेटली ग्रिड हमारी हिंदुस्तान की है, ग्रिड को भी हमको पोल्यूट नहीं करना है। तो हमने क्या किया है, ये 3 लेवल स्पेस वेक्टर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का अडॉप्टेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि ये ग्रिड हमारी जो वेवफॉर्म होती है वो बहुत ही क्लीन हो जाती है। और क्लीन होने से क्या है कि हमारे जो ग्रिड में हम लोग जो एनर्जी एक्सपोर्ट करते हैं तो वो काफी हद तक एकदम क्लीन हो जाती है। क्लीन होने से क्या होता है कि आपका ग्रिड में ईएमआई, आरएफआई या जो कुछ हार्मोनिक्स है वो काफी लेवल तक कम हो जाती है। कम होने से ग्रिड भी अपनी काफी अच्छा दिख जाता है। ये बेसिकली एक स्लाइड में हमने ये बताया गया है कि जो हमारा इन्वर्टर और से बेहतरीन है, ये इसके फैक्ट्स हमारे पास में पूरा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी है। अगर किसी को चाहिए तो वो उसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी दे सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने लास्ट ईयर आई एग्जीबिशन में 5G मॉडल भी हमने इंट्रोड्यूस किया। ये 5G मॉडल क्या है सर, वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि इसी में हमने क्वाड कोर टेक्नोलॉजी यूज किया है और सिलिकॉन कार्बाइड डायोड, जिसके कारण हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो ऑलमोस्ट 1.7% तक चला गया। मतलब 70% आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं हमारे इन्वर्टर्स पे। 30% तो हम लोग बकायदा कहते हैं कि भाई आप लोड कर सकते हैं, और आप 50% कर लेते हैं। पर 50% करने से आपका फायदा नहीं होता है, क्योंकि आउटपुट में हम लोगों ने 10% ही आपको लिवरेज दिया है। 10% के ऊपर तो आप जा नहीं सकते। तो ये बेसिकली बिकॉज ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड है। दूसरा, हमने जो 3 लेवल टेक्नोलॉजी यूज की है उसमें हमने एक फॉरवर्ड डायोड और ऐड किया हुआ है, जिसके कारण और आपका एफिशिएंसी और ट्रिगरिंग बढ़ जाता है। तीसरा, यहाँ पे हमने जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इन्वर्टर है ये ऑलमोस्ट 60 to 70 डिग्री तक काम कर सकता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और इसमें ये फ्यूजलेस टेक्नोलॉजी यूज, इसमें हमने जो अभी एसपीडी यूज किया है, मैं एक छोटा एसपीडी के लिए आपको ये हमारा ये प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में भी बताऊंगा कि एसपीडी का एडवांटेज, हमारे एसपीडी का एडवांटेज क्या है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हेलो, इसमें हमने 7 to 10 इयर्स का वारंटी भी दिया हुआ है, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट को बहुत अप्रिशिएट किया गया है नॉर्थ में और राजस्थान में। और ये प्रोडक्ट मतलब जो यूज कर एक बार कर लेता है तो मतलब दूसरे और प्रोडक्ट को भूल जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। इसका DHD भी ऑलमोस्ट लेस देन 1.7 to 2.3 है। इसमें डी रेटिंग जैसे मैंने बताया तो ये 60 डिग्री के ऊपर भी चल जाता है। और इसमें हमने ये जो इन्वर्टर, ये हमारे पास में एक ATM मशीन है, जिसका मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो भी शेयर करूंगा कि वो एक बहुत ही जबरदस्त मशीन है, जिससे इट्स बेसिकली एन ऑटोमेटिक टेस्टिंग इक्विपमेंट, जिसमें पूरा पैरामीटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर टेस्ट हो जाता है और 0 डिफेक्ट करके ये प्रोडक्ट आ जाता है। ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज आपको मिल जाता है ATA टेस्टिंग। और तीसरा भाइयों, इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज ऐसा है, इसमें ऑटो फीडबैक फैसिलिटी भी है। मतलब आज ऐसा समझ लीजिए कि भाई आपने आपका इन्वर्टर लगा दिया है, आपको क्या पता है यह इन्वर्टर चल रहा है या नहीं चल रहा है। बहुत से बार हमने जो पुराने इन्वर्टर्स लगाए हैं तो कोई कस्टमर आता है, कहता है अरे मैंने तो 2 महीने के बाद में मेरा इन्वर्टर देखा तो चल ही नहीं रहा है। इसमें अगर आपका इन्वर्टर सपोज GPRS या वाईफाई या लोकल मॉनिटरिंग पे उपयोग किया है, हमारा जो बैकएंड सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है ये ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन भी कर लेता है। आपको जाने की और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर महीने में हम लोग कुछ ना कुछ नया वर्जन अपग्रेड करते हैं, जिसके कारण आपका एफिशिएंसी बढ़ रहा है। तो वो एडवांटेज हम लोग हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको देना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फ्री अपग्रेडेशन आपको मिल जाता है। तो दिस इज व्हाट 5G प्रोडक्ट इज। ये हमारा एक 3 किलोवाट का पीसीबी है, तो इसमें सिंगल MPPT, डुअल MPPT आता है। तो इसमें देखा गया है, तो आप ये जो कंपोनेंट, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं भाई, तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपकी क्वालिटी क्या माने रखे। चाइनीज कंपोनेंट्स बहुत से सस्ते मिलते हैं, आधे रेट में मिल जाते हैं। हमने क्या किया है, कंपोनेंट्स यहाँ पे हमने अच्छी क्वालिटी की यूज किया है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है, 10-20 एक अराउंड 10% का डिफरेंस पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे कैपेसिटर्स हमने निपॉन करके, जापानीज है, वहां से यूज किया है। विषय करके ये एक जर्मन की कंपनी है, जिसके हम लोगों ने कैपेसिटर, जिसकी अभी हमारे पुणे के
नजदीक उनकी फैक्ट्री भी आ गई है। जो इसके आईजीबीटीज है, जो बड़े आईजीबीटीज है, ये विनकोटेक करके है, इनके यूज किए हैं। छोटे वाले हमने इन्फिनियन के यूज किए हुए हैं। उसके बाद में जो सेंसर्स है वो हमने टमोरा करके जो कंपनी है उनके यूज किए हुए हैं। एक्साइज इंस्ट्रूमेंट के हमने डीएसपी यूज किए हैं। उसके बाद में मैनी मैप करके जो उसके बड़े जो इन्वर्टर्स हैं हमारे 50 किलोवाट एंड अबव, उसमें हमने फैन जो इंटरनल फैन होते हैं वो यूज किए हैं। क्योंकि सिंगल फेज और करीबन 20-30 किलोवाट तक हमारा जो टेक्नोलॉजी है फैनलेस टेक्नोलॉजी, उसमें हाई कैपेसिटर्स जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोगों ने हिलियम कंपनीज की यूज किए, दूसरी के हमने टीडीके के कैपेसिटीज यूज किए हैं। तो आपने देखा होगा कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट की क्वालिटी हम लोग ने हैंडल की हुई है, जिसके कारण क्योंकि हमारा हमारा प्लानिंग ऐसा है कि भाई साल में अगर हम लोग 20-25 हजार इन्वर्टर देते हैं, तो अगर कोई कंपोनेंट में डी रेटिंग करता हूँ तो डेफिनेटली और 4-5 साल के बाद में मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी सर्विसिंग करने के लिए। तो भले ही राइट फ्रॉम बिगिनिंग हम लोगों ने अच्छी क्वालिटी देने का प्लान किया हुआ है। ये कंपोनेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये हमारे इंटरनेशनल पार्टनर थे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम लोग एक इटली की कंपनी है, ताइवान पीसीबीज बना रही है। 4 लेयर पीसीबी है, ताइवान की करके, चाइना की कंपनी यहाँ पे है, पीसीबी का असेंबली करते हैं हम लोग एक साथ। जैसे मैंने बताया, इनके साथ में हमारा जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक्सास। और पोर्टुगल की जो कंपनी है, यहाँ पे हमारे प्रमोटर्स ने भी काफी हद तक काम किया है। अब ये नए प्रोडक्ट हम लोग लेके आने वाले हैं, जैसे ईवी चार्जर्स है, उसमें भी हम लोगों का काम। ये हमारा इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटीज है। यहाँ पे हम लोगों का पीसीबी असेंबली, जैसे मैंने बताया कि ये बाहर से हम लोग कर रहे हैं, बट डेफिनेटली बाकी का जो टेस्टिंग है, IP65 है या हीट रन टेस्ट है या ATA टेस्ट है, फाइनल पैकिंग QC है, ये हमारा पुणे में भी होता है। ये एक मशीन है जो हम भी मतलब ये चाइना में है। हमारे जो पीसीबी आते हैं, ये पीसीबी हम लोग यहाँ पे इसमें चेक करवा लेते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का ग्लू हमारे पीसीबी के ऊपर छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, पीसीबी में यूवी लाइट्स है या 4-5 साल के बाद बिकॉज ऑफ हीट, धूल, माइक्रो फ्रैक्चर्स होने के चांसेस आ जाते हैं, उससे अपना पीसीबी फेल हो जाता है। तो ये ग्लूइंग करने से क्या है कि आपका पीसीबी एटलीस्ट 15-20 साल तक टिक जाता है। तो ये स्पेशल टाइप का ग्लूइंग है जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। ये हमारे पीसीबी पे हम लोग देते हैं, जो मेरे ख्याल से बाकी के जो कंपनीज अवेलेबल है उनके पास ये टाइप का टेक्नोलॉजी या ये टेक्नोलॉजी यूज करते नहीं है बिकॉज ऑफ द प्राइस। ये ग्लूइंग हो रहा है, ये टाइप का दिखाई दे रहा है यहाँ। उसके बाद में हमारा जो टोटल इंस्टॉलेशन है, टोटल इंस्टॉलेशन हमने जो किया हुआ है, जैसे लास्ट टाइम जेडा में जो था वो अराउंड 34 मेगावाट का किया था। स्काई में हमने करीबन 26 मेगावाट का किया था। स्काई में बहुत सीखने मिला हमें। हमारे प्रोडक्ट इनिशियली फेल भी गए थे। ऐसा नहीं कि भाई हमारे प्रोडक्ट दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। हमें भी फेलियर का, हमें भी बहुत इनिशियली प्रॉब्लम हुआ है। काफी हद तक हमारे क्लाइंट ने भी हमें थोड़ा सा नाराज भी किया था, पर हमने वो सब अपग्रेड किए हैं। अब हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जहाँ जहाँ हमने इन्वर्टर दिए हैं करीबन 2 या 3 साल से, अब सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। और हमारे कस्टमर्स अभी रिसेंटली PGVCL में हमने तकरीबन 60 to 65 मेगावाट का काम कर लिया है। ये सब हमारे जो गुजरात के EPC वाले हैं, ये सब उनके श्रेय जाता है। उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट में उन्होंने हमें प्रमोट किया है। उसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सीके में हमने काफी बड़ा काम किया है, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किया है, IIT जैसे ग्रुप्स में हमने काफी जगह पे लगाया है। आपको पता है IIT अनलेस एंड अंटिल ड्यू डिलिजेंस नहीं होता है प्रॉपर्ली, वो एक भी इन्वर्टर लेते नहीं है। ये लोग यहाँ पे आके गए, चेक किए हैं पूरा हमारा इन हाउस में, और ये प्रॉपर्ली उन्होंने ऑर्डर्स दिए हमारे। यूरेडा में है, सिस्कॉन करके मैसूर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहाँ पे हमने दिए हैं। यूपी नोएडा में, हेरेडा में है, अरियल में है, NIC में हमारे इन्वर्टर बिठाए गए हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी काफी बिठाए गए हैं। कमर्शियल EPC है, रेसिडेंशियल, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स, होटल, फार्मा कंपनी। हमने काफी एक्सपोर्ट भी किया है, बहुत ज्यादा तक नहीं किया है, बट डेफिनेटली हमारा फोकस एक्सपोर्ट में भी है, क्योंकि अभी हमारा प्रोडक्ट एक बेहतरीन प्रोडक्ट उभर के आया हुआ है और हम सोच रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट में भी हमें काफी हद तक इसका एडवांटेज मिले। तो बेसिकली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो सिंगल फेज है, 3 फेज है, और बाई डायरेक्शनल इन्वर्टर्स भी हमारे काफी हद तक दिए हुए हैं। इसका हम लोग एक नया प्रेजेंटेशन
अभी भी नेक्स्ट वीक में कर रहे हैं। जिनको हाइब्रिड इन्वर्टर में इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकते और ऑफ ग्रिड। दोस्तों काफी लोग हमें मतलब कह रहे हैं कि भाई आपके इन्वर्टर्स तो आप दूसरे कहीं से बना रहे हैं, ये हमने एक इंडियन कंपोनेंट कंटेंट का एक चार्ट निकाला हुआ है। मैंने जैसे बताया कि भाई हम 2017 या 2016 तक तो डेफिनेटली हम लोग बाहर से ले ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले रहे हैं। जैसे केबल्स, आज केबल्स हम लोग 100% यहीं पे बना रहे हैं, यहीं से ले रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चरर से। इंडक्टर्स पुणे की ये कंपनी है जहाँ पे लोकल, हम लोग क्या करते हैं सर, हमने बेसिकली हमारा जो प्रिंसिपल है कि भाई बी इंडियन, बाय फ्रॉम इंडियन एंड लेट whatever profits and whatever revenue is there, that has to be distributed amongst India. So वही हमारा प्रिंसिपल पे हम लोग चल रहे हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा कामयाब भी हो रहे हैं और आप लोगों ने हमें एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया है गुजरात में, इसके कारण हमने ये मेड इन इंडिया के कंसेप्ट में हम लोगों ने अभी ऑलमोस्ट 70 to 80% ये अचीव कर लिया है। जैसे इंडक्टर्स मैंने बताया, हमने लोकल मैन्युफैक्चरर जो पुणे में है उनको ही प्रोत्साहित किया है, उनको टेक्नोलॉजी दी है कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ये उन्होंने अभी मैन्युफैक्चरिंग किया, उनसे ले रहे हैं। कैबिनेट पुणे की एक कंपनी है थर्मोफैब करके, वहां से हम लोगों ने कैबिनेट अभी बनाना चालू कर दिया है। बहुत ही मतलब मैं आपको कहूंगा कि जो हम लोग अभी चाइना से बीच में कैबिनेट लेते थे पहले, उनसे भी अच्छी क्वालिटी हमको यहाँ से मिल रही है और प्राइस भी हमको काफी हद तक अच्छी मिल रही है। हीट सिंक, जैसे मैंने बताया कि हीट सिंक हमने हिंडाल्को और 2-3 और कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप की हुई है, जिनसे हम लोग हीट सिंक बना रहे हैं। कंपोनेंट अभी भी हम लोगों को डिपेंड रहना पड़ता है पीसीबी के लिए हम लोग, पर हमारा टारगेट ऐसा है कि 2021 तक 100% इंडस्ट्री हम लोग ये यूज कर पाए। ये R&D आप लेंगे तो R&D में जैसे मैंने बताया कि कैड का हमारा इन हाउस है, पीसीबी डिजाइनिंग हमारा खुद का है, यहाँ एम्बेडेड डिजाइन भी हमारा खुद का है, हार्डवेयर डिजाइनिंग भी हमारा खुद का है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग भी हमारा, तो 100% ये डिजाइनिंग हमारा खुद। उसके बाद में जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है, जैसे मैंने बताया कि हमने ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन INR इस पे खर्चा किया। हमारी एक इंडियन कंपनी है कि जिसने इतना ज्यादा सिर्फ R&D पे खर्चा किया। बहुत से कंपनीज आपने देखा होगा कि उनका बजट मार्केटिंग पे ज्यादा होता है और R&D पे कम होता है। हमारा उल्टा है, हमारा R&D पे ज्यादा है और इसमें कम है। तो R&D हमारा बेसिकली टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोटिंग टेस्ट इक्विपमेंट हमने परचेज किया है, HV पावर सप्लाई यूज की है, एक्सट्रीम हीट चेंबर हमने बनाया है, ये बेसिकली NTPC के लिए हमने बनाया था, जो हमें बाकी इसके लिए भी काम में आ रहा है। डैम टेस्टिंग यूनिट है, ATA टेस्टिंग यूनिट्स है और हमारे पास में IP65 भी टेस्टिंग चेंबर है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स है। अभी दोस्तों एक नया आपको हमने एक नया इंट्रोडक्शन किया है। काफी लोगों ने हमें बताया कि भाई 2.3 किलोवाट का IC चाहिए और 2.3 किलोवाट का इन्वर्टर हमें होना चाहिए गुजरात, क्योंकि अगर आप 330 वाट पैनल का 6 पैनल यूज करते हैं तो आपका अराउंड 1980 वाट तक चला जाता है। तो आप वहाँ पे सब्सिडी आपको 1980 वाट पे मिलती है और आप 2.2 किलोवाट का इन्वर्टर वहाँ पे यूज। अगर आपने 2.3 किलोवाट का इन्वर्टर यूज किया है और आपने अगर 7 पैनल वहाँ पे 330 वाट के, तो आपका अराउंड 2310 वाट पीक बनता है। तो आपका सब्सिडी आपको 2300 मतलब 2.3 किलोवाट के इन्वर्टर पे मिलेगा। आपका सब्सिडी आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 320 वाट पे। ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल हो गया और ये हमारा IC भी आ गया है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है IC। तो एक नया प्रोडक्ट आपके लिए अब अवेलेबल हो गया है। ये काफी हमारे जो भारत के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने काफी हमारे पीछे लगे और कहा कि भैया आप इमीडिएटली बना दो, तो जिससे कस्टमर का भी फायदा होगा और EPC वालों का भी फायदा। तो ये प्रोडक्ट भी अभी इमीडिएटली अवेलेबल है फॉर सेल। उसके बाद में हमारे पास में हाइब्रिड सोल्यूशन है। मैंने कहा है कि हाइब्रिड सोल्यूशन के लिए मैं एक सेशन रखना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट भी है और ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आज की तारीख में हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट इसमें हम लोग करेंगे। उसके बाद में ऑफ ग्रिड प्रोडक्ट भी है, इसमें भी मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारा जो सेंट्रल वेब मॉनिटरिंग सिस्टम। दोस्तों ये सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा जो ये सर्वर है, ये इंडियन सर्वर है। ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज आपको मिल जाता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है या कस्टमर की है वो बाकायदा इंडियन सर्वर पे प्रोटेक्ट होती है, सिक्योरिटी मिल जाती है। आप कोई भी चाइनीज इन्वर्टर लोगे तो उसका चाइना में सर्वर होता है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो चाइनीज लोगों के बाद।
फिर वो कंपनी बंद हो जाती है तो आपका पूरा सर्वर भी बंद हो जाएगा और आप फिर डायग्नोसिस नहीं कर पाओगे। तो इंडियन सर्वर लेना कभी भी अच्छा। तो यूज प्रेफरेबली ऑल इंडियन सर्वर बेस्ड इन्वर्टर। ये हम कहना चाहते हैं कि सर्वर जिनके पास में है इंडियन, वो आप यूज करें। अब ये मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसमें हम लोगों ने अभी एक ऐसा मॉनिटरिंग भी दिया है कि भाई आपको एक हमने जिनका भी 1 मेगावाट के ऊपर अगर चला जाता है तो उनको एडमिन पैनल दे देते हैं। एडमिन पैनल में क्या है कि आपके पास जितने आपके जो कस्टमर्स है, आप सिंगल पॉइंट में देख सकते हैं और वहां पे अगर इश्यू आ जाता है, कोई अगर फॉल्ट आ जाता है, तो आप इमीडिएटली रेक्टिफाई कर सकते हैं कि भाई ये फॉल्ट किस वजह से आया है। हमने अगर आपको स्मॉल ट्रेनिंग दे दिया तो आपके लोग भी रिमोटली बैठ के, क्योंकि आज की तारीख में मैंने देखा है आज कस्टमर को हैंडल करना, वहां पे आदमी को भेजना बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। ये खर्चा आप कम कैसे कर सकते हैं? तो रिमोट मॉनिटरिंग से कर सकते हैं। अब मैं तो ये प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो टीम बैठती है रिमोटली, इतना मतलब अच्छा अभ्यास किया उन्होंने और वहां से ही वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि कस्टमर को कह देते हैं कि भाई सर्टिफाई हुआ है क्योंकि आपका एक फेज चला गया है या एक फेज का आपका किसी भी ट्रिप हो गया, वो ट्रिप आप निकाल दीजिए या वापस तो ये कर लीजिए। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है रिमोट, तो आपका खर्चा भी कम हो जाता है और कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि भाई ये ईपीसी प्लेयर हमको हमारी तरफ से मतलब हमारे लिए काफी हद तक काम। ये रिमोट मॉनिटरिंग हमारा जो है ये वाईफाई पे भी चलता है, जीपीआरएस पे भी चलता है। अब ये जीपीआरएस जो अभी इसमें सिर्फ 5G पे हम लोग अभी तक लेके नहीं आए हैं, पर 3G पे आराम से चल जाता है। उसके बाद में ये लोकल मॉनिटरिंग भी हमने अभी डेवलप किया हुआ है कि भाई जिसके पास में 3G नहीं है, जिसके पास वाईफाई नहीं है, जीपीआरएस नहीं है, तो वो भी यूज कर सकता है। लोकल मॉनिटरिंग में आपको वाईफाई जीपीआरएस की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ मोबाइल होना चाहिए और इन्वर्टर होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास लैन है तो लैन के थ्रू कर सकते हैं, बोरेट पाई के थ्रू भी आप कर सकते हैं, या आपका खुद का स्काडा है तो हम आपको प्रोटोकॉल दे सकते हैं, आप आपका उसमें से यूज। ये अभी एक चार्ट दिया है हमने, एक चार्ट में आपने देखा होगा अभी एक 2.2 किलोवाट का है, ऑलमोस्ट 12.5 यूनिट जनरेट कर 2 किलोवाट का एवरेज जनरेशन 10.8 यूनिट, 3 किलोवाट का 17.4 यूनिट जनरेट कर रहा है, 5.2 का अराउंड 27.31 यूनिट जनरेट। यहाँ पे दूसरी जगह पे 5 का एवरेज जनरेशन 24.6 है, 10 किलोवाट का 5.2 है। मतलब आप देखोगे कि हमारा 5 के ऊपर ही जनरेट करता है। यहाँ पे अगर आपके पैनल काफी क्लीन है, प्रॉपर वायरिंग हुआ है, प्रॉपर इंक्लिनेशन है, तो 5 प्लस जनरेट करेगा। ये 12 किलोवाट का 63.1 जनरेट कर रहा है, 15 किलोवाट का 76 यूनिट जनरेट कर रहा है, 25 किलोवाट का 126 कर रहा है, 60 किलोवाट का 320 यूनिट, 50 किलोवाट का 258 यूनिट जनरेट। तो ये एक्चुअल डेटा हमने कलेक्ट किया है। आप हमारा जो सर्विस बैकअप है, जैसे हमारा टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे आप लॉग ऑन करेंगे तो इमीडिएटली आपके कस्टमर को या आपको सर्विस। हमारा बेसिकली 4 लेवल सर्विस। 4 लेवल ऐसा है कि अब जैसे गुजरात में हमारे पास में राजकोट में इंजीनियर है, आनंद में है, सूरत में है या बड़ौदा में है, अहमदाबाद में 2 इंजीनियर्स हैं। तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आप अगर लॉग इन कर देते हैं, इमीडिएटली वो कॉल हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे चला जाता है और वो जाके वहाँ पे फॉल आइडेंटिफाई करते हैं। इनफैक्ट हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो सेकंड लेवल इंजीनियर्स हैं, उनके पास में हमारा पूरा ऑसिलोस्कोप से लेके, मतलब ऐसा नहीं कि भाई वहाँ पे जाके सिर्फ बोर्ड चेंज करना, ऐसा नहीं। हम लोग जाके कंपोनेंट लेवल पे भी काम करते हैं, अगर कस्टमर अलाउ करते हैं तो करते हैं, वो भी करते हैं। हमारी एक कंपनी है जो प्रॉपर टूल्स वगैरह लेके कस्टमर के पास, तो वो सेकंड लेवल है। थर्ड लेवल हम लोग डायरेक्टली अगर चाहिए तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम लोग स्पेस भेज सकते हैं या इन्वर्टर भेज सकते हैं। और हम लोगों ने अभी बहुत से जगह पे ऐसे किया है कि भाई हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी हमने प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दिया है कि भाई आपको कैसे फॉल्ट फाइंडिंग क्या करना है। मतलब बहुत सी जगह पे रिमोट अगर हमारा आदमी इमीडिएटली पहुंच नहीं पाता है, इनफैक्ट हमने ऐसा प्लान किया है कि within 48 hours we should give a proper technical support to our customers. So that is what we are also doing. Only in this lockdown period we are not able to do because engineers हैं हमारे, तो वो बाहर निकल नहीं जाते हैं। अगर बाहर निकलना भी चाहते हैं तो वहाँ पे जो कंटेंट एरिया है वहाँ पे उनको अलाउड करते नहीं है, तो ऐसा प्रॉब्लम फेस होता है। हेलो, ये थोड़े से फोटोग्राफ्स है, ये जैसे हमारा 80 किलोवाट
इन्वर्टर का प्रोडक्शन चल रहा है। उसके बाद में ये हमारा जो R&D सेंटर है, ये प्रोडक्शन जैसे आईपी टेस्टिंग, ये वाला जो बंदा है ये आईपी टेस्ट कर रहा है, एचपी टेस्ट कर रहा है। ये वेवफॉर्म, ये जो लड़की है ये वेवफॉर्म देख रही है कि भाई वेवफॉर्म बराबर है कि नहीं। क्या होता है अगर वेवफॉर्म भी इनकरेक्ट है तो इन्वर्टर तो चल जाता है पर लॉन्ग टर्म के लिए चलता नहीं है, या वो जनरेशन कम दे देता है, या कभी कभी वो टूट भी जाता है। उसकी वजह से ये प्रॉपर वेवफॉर्म देखना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद में एचपी टेस्ट हो जाता है हर एक इन्वर्टर में। ये हमारा टेस्ट सेटअप है। ये एटीएम मशीन हमारा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेस्टिंग हो रहा है। ये हमारा हीट रन टेस्ट हो रहा है, ये अभी हीट रन टेस्ट है। ये अभी ये एनटीपीसी का यूटिलिटी के जो इंस्पेक्टर्स आए थे उनके सामने ये पूरा हीट रन टेस्ट हमने किया था। ये हमारा पैकिंग डिवीजन है, ये हमारा स्टोर्स है। आपने देखा होगा जो जिस चीजें हमारे जो बड़े बड़े इन्वर्टर हैं, जैसे बहुत सिंपल है। ये हमने इन्वर्टर, आपने देखा होगा हमारा इन्वर्टर बहुत फैंसी नहीं है, बट इसमें एडवांटेज ऐसा है कि यूजर फ्रेंडली, इंस्टॉलेशन इमीडिएटली हो जाता है। वो सबसे ये हमारा ऑफिस है। अभी इसमें हमने नया और एक एड ऑन फैसिलिटी किया है। बेसिकली गुजरात के लिए नहीं है, पर यहाँ पे क्रॉस मीटरिंग है, आपको एक्सपोर्ट नहीं करना है तो उसके लिए जीरो एक्सपोर्ट सिस्टम है। ये हमारा ईवी चार्जर है। उसके बाद में स्ट्रिंग मॉनिटरिंग हमने अब नया इन्वर्टर डेवलप किया है कि आप स्ट्रिंग लेवल पे भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एंटी-पीआईडी किट भी हमने डेवलप, ये हमारे नए डेवलप है। और हम लोग कौन सी जगह पे मार्केटिंग टेक्निकल कस्टमर बेस है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। काफी मतलब ऑल इंडिया में हमारा कस्टमर बेस काफी अच्छा हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल ईपीसी कंपनीज में हमारा गया हुआ और क्रेडेंशियल्स काफी लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया हुआ है। तो बेसिकली लाइक दिस इज व्हाट के सोलर इज। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हम लोग जाएंगे। उसके बाद में मैं थोड़ा एचपीडी का एक स्लाइड आपको रन करके बताऊंगा।